Alright. जी, unsure of dates. बच्चों का कपड़ा है ना। बड़ा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है। देखो एग्जाम के अंदर अनश्योर ऑफ डेट्स आ जाता है। ऑप्स में तो डेट्स इज अ वेरी फर्स्ट थिंग। उसकी वजह ये है कि जब तक आपको डेट्स ही नहीं पता होंगी पेशेंट की, तो यू डोंट नो एग्जैक्टली के व्हेन आर यू गोइंग टू डिलीवर हर, नंबर वन। नंबर टू, मोड ऑफ डिलीवरी उस पर डिपेंड करिए। नंबर थ्री, मॉनिटरिंग कब से शुरू करनी है और क्या करनी है। सो ये सारी चीजें, और इसीलिए डेट्स इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो शुरू में आपके केस को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करता है। उसमें अगर पेशेंट इज अनश्योर ऑफ डेट्स, जो काफी हमारे, इट्स नॉट ओनली इन आवर कंट्री और एनीथिंग, हर इंसान का नेचर है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर योर डेट्स। इवन बल्कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो ज्यादा भूलते हैं अपनी डेट्स। तो इस वजह से इसको आगे मैनेज कैसे करना है और बहुत ऑथेंटिक तरीके से कैसे मैनेज करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम और फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल। सो यस, मारिया ने किया है वॉलंटियर। ओके, केस मैं दे देती हूँ मारिया। किसी जी और मैम। के पास कोई केस है आप बता दो, हम मैं मारिया के साथ कर लूंगी या कुछ भी, तो हम वो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं दे देती हूँ। नहीं, अच्छा। सो पेशेंट इज ग्रेविडा 2 पैरा 1 and she is unsure of dates. According to her, she is at 7 months of amenorrhea, and she has also presented with a report showing low hemoglobin. मैंने एक चीज इसमें इसलिए ऐड की क्योंकि वही बात है कि मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और फिर मोड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द डेट्स इन दिस केस. So she is gravid to para 1 with previous one SVD and Okay ma'am. the baby. And now she has come with the report of low hemoglobin. According to her, she's at 7th month of gestation, but she doesn't remember her shows, her dates slowly. ठीक है जी मारिया. Okay ma'am. Okay, ma'am. First, I will introduce myself to the patient, take her introductions along with her educational status and occupation. Then I will ask her whether her cycle has been regular or not, or whether she was using any contraception prior to getting pregnant. And I will further ask her whether she can correlate her LMP with any social event or the calendar month. When did she have her first antenatal visit? What was the gestational age at that time? Did the doctor discuss the discrepancy in the dates with her? And any urine pregnancy test or the beta HCG report available? When did she feel nausea and vomiting? Can she correlate it with any month? Any early trimester scan or the dating scan available? When did she feel the fetal movements? And when was the anomaly scan done? Also, can she correlate the date of the anomaly scan with any calendar month? And currently, how is she perceiving her abdominal growth? Is it going fine? Is she satisfied with the fetal movements? And since she has also presented with a low HB report, so I would like to review it. And then I will ask her about her diet, whether she takes a diet rich in proteins, green leafy vegetables, or iron, and whether she has any history of vomitings, diarrhea, any per-rectal, per-vaginal bleeding, or any abdominal pain, any perianal itching, any other comorbidities like hypertension, diabetes mellitus, or asthma, epilepsy, or any other comorbidities, any autoimmune disorder that she know of, and whether she has consulted any doctor with this complaint yet or not, any investigations apart from her low HB available or not. And then I will also like to ask her about her any previous surgical history, about her relevant family history, history of any drug or food allergies, and whether she smokes or use any recreational drugs. After my history, ma'am, I'm done with my history. Would like to move on to the examination. ठीक है, आप In the एग्जामिनेशन कर लो जी. okay. In examination, first I want to assess the GCS of my patient and calculate her BMI, then rule out PELAR in the conjunctiva and the palmar creases along with koilonychia, clubbing, jaundice, and cyanosis. After the thyroid examination and the breast examination, we'll move on to the systemic examination.
And then I will like to perform the abdominal examination. Inspection will assess the normal contour of the abdomen, the centrally placed umbilicus, for any scar mark or visible pulsations or stria gravidarum. Then on palpation, I will measure the symphysiofundal height along with the assessment of the amount of the liquor, the estimated fetal weight, and whether and then I will auscultate the heart sounds. And that's it, ma'am. I'm done with my examination. ठीक है, Now, फाइन गुड। आप इन्वेस्टिगेशन मांग लो, फिर हम थोड़ा सा यहाँ तक का डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद मैनेज, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन। आई वांटेड कि इस पे हमारा वो कोई चीज मिस ना हो, तो आप वो कर लो, एक दफा कर लो, बिल्कुल आप इन्वेस्टिगेशंस में मांग लो। ma'am, investigations first, I would like to go for the baseline investigations, her CBC, along with blood group with RH factor, hepatitis B surface antigen, anti-HCV, anti-HIV, any random or fasting blood sugar available, and the midstream urine. And its specific investigations, I would like to go for according to the red cell indices. I will further like to ask for the serum ferritin and the peripheral smear and the HB electrophoresis report if available. And then I will ask for her dating early viability scan, then the dating scan with NT, and the anomaly scan if available, or any recent scan. सो ओके फाइन, ठीक था आपका सारा, यू वर गुड एक्चुअली। लेकिन वही बात है कि जिस तरह मैं कहती हूँ कि 70% की तैयारी करके जाएं, ताकि कोई वो ना रह जाए कसर के पास होना या नहीं। 60% की अगर तैयारी या एग्जाम की परफॉर्मेंस 60% होगी तो पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं, 59 भी आ सकते हैं और अच्छे भी। अगर बहुत ही अच्छा करेंगे ही तो पास होंगे, असल में बात सारी यही है एग्जाम में। सो यू वर गुड, लेकिन वही थोड़ा सा बॉर्डर लाइन अभी तक था, आगे तो मैनेजमेंट में हो सकता है कमाल ही दिखा दो। सो इसके अंदर व्हाई वाज इट जस्ट बॉर्डर लाइन? देखो बात आपकी ठीक है, आई थिंक यू डिड नॉट रियली मिस मच। थोड़े बहुत कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने मिस भी किए हो तो वो भी बहुत थोड़े, लेकिन कुछ चीजें, अब देखो आपके पेशेंट में दो मेन मसाइल थे, एक था अनश्योर ऑफ डेट्स और एक था अनीमिया, राइट? सो व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो इन दो पॉइंट्स को क्विक, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, आई नो जिस तरीके से आपने बताया वो टाइम के ऊपर पूरा हो रहा है, लेकिन आपका और भी बेहतर इस तरह होना चाहिए कि आपके और पॉइंट्स एडअप हो लेकिन टाइम में पूरा हो, और यानी कि वो इतने इंपॉर्टेंट और फोकस्ड पॉइंट्स हो कि वो पॉइंट्स भी पूरे हो रहे हैं और टाइम पे भी पूरे हो रहे हैं, यानी कि वो एक्स्ट्रा बातें नहीं है। मतलब अब ये जो दो मेन मसले पेशेंट के हैं, क्विकली आपने बायोडेटा की बात की, तो आपने अगर साथ में शुरू में देखो, इट वाज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, वो वैसी बात कर रही हूँ कि आई थिंक यू डिड नॉट रियली मिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेकिन ये बात है कि आपने प्रेजेंट इस चीज को ही ऐसे करना है कि 70%, यहाँ तक तो एटलीस्ट 70% बने। आपने आप जब स्ट्रक्चर्ड वाइवा में हिस्ट्री बता रहे हो और एग्जामिनेशन बता रहे हो, तो एक तरह से पेशेंट को समराइज करते जा रहे हो एग्जामिनर के माइंड में। पेशेंट को दो मेन मसले हैं, आपने क्विकली बायोडाटा जब बोल दिया उसके बाद क्विकली उसकी बोलो कि शी इज हियर विद टू मेन कंप्लेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो गिवन, जिसे हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कह लो कहते हैं, ताकि पता चले कि अब आपकी जो आगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस है वो इन दो बातों पे ही फोकस्ड है, राइट? तो आप बोलो कि शी हैज कम विद द प्रॉब्लम दैट शी डजंट रियली रिमेम्बर हर डेट्स, ठीक है। सेकेंडली शी इज हैविंग लो एचबी, यानी अब आगे जो आप बात करने जा रहे हो बेसिकली इन दो बातों पे करने जा रहे हो। वही आपने कंपाइल एक करता जाना ना, एक एक तो होता है थ्योरी का आना। देखो पास जो रिटर्न से पास हो जाते हैं उसमें से सिर्फ शायद 10% वाइवा पास करते हैं, क्यों? क्योंकि रिटर्न पास करने का मतलब है थ्योरी तो सारा आती है, वाइवा देने का भी तो एक तरीका होता है ना, वो भी तो एक एक जिसे कहते हैं ना टैक्टिक होता है कि आप हाउ आर यू टेकिंग, वो ट्रैक क्या आप ले रहे हो वाइवे का, वो आपने डिसाइड करना है, वो एग्जामिनर ने नहीं करना। तो आपने अगर वो आप डिसाइड करोगे ही तो आपके 70% आएंगे, अगर वो एग्जामिनर डिसाइड करेगा तो फिर शायद 60 आ जाए। सो वो किस तरीके से आपने पहले बता दिया कि इन दो बातों पे मैं बात करने लगी हूँ कि शी इज अनश्योर ऑफ डेट एंड शी इज हैविंग लो एचबी। उसके बाद आप उसके जब एलैबोरेट करोगे, यू स्टार्टेड वेरी वेल, इसको और अच्छा, वैसे तो योर
हिस्ट्री वाज नॉट बैड, लेकिन अगर इसको और अच्छा किया जाए तो यू कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम द प्रीवियस प्रेगनेंसी कि पिछला बच्चा कितना बड़ा है, वो उसकी क्या डिलीवरी थी, वो अब फॉर एग्जांपल इफ दैट चाइल्ड इज लेस देन 2 years of age, तो मे बी शी इज फीडिंग द बेबी आल्सो, क्या पता लेक्टेशनल एमेनोरिया, चलो आपने पीरियड्स की उसकी बात की, एंड व्हाई एग्जैक्टली शी डजंट रिमेंबर हर डेट्स, ऐसा क्या हो गया। सो वो भी आप बात, उसके बाद ठीक है, जो दो चार बातें जो हर कैंडिडेट बोलेगा, जो आपने भी बोली, सो डोंट थिंक कि क्योंकि वो पॉइंट्स पूरे हो रहे हैं तो यू वर नॉट एट ऑल, यू वर ओके, कि एवरीवन नोस कि उसने डेट्स पूछना है कि कैलेंडर डेट से याद है पीरियड रेगुलर थे या नहीं थे, हर एक पूछेगा कि उसको फीटल मूवमेंट की डेट याद है कि नहीं, हर एक पूछेगा पहला ट्राइमेस्टर स्कैन कराया या नहीं कराया, तो वो चीजें जब आपने बोली तो देवर नॉट एक्स्ट्रॉर्डनरी, राइट। बंद वो हो आपको जाएगा। पास नहीं करा रही, वो तो हर बंदे ने वहां बैठ के बोलना है जो पार्ट 2 के वहां पे वाइवे तक पहुंच गया, तो जो भी एलिजिबल हुआ है उस वाइवे में पहुंचने के लिए उसने ये बातें वैसी करनी है, तो आपने अब उससे आगे की कोई एक्स्ट्रा बातें करनी है ना, तो आपने वो चीजें, तो चलो डेट्स को रूल आउट किया, फिर आपने ये भी कि वो चीजें यू वर डूइंग फाइन। उसके बाद बात सेकंड बात आपने की थी कि लो एचबी की रिपोर्ट, उसको आपने कम एलेबोरेट किया, आपने आपने उसको उतनी इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आपने अनश्योर ऑफ डेट्स को दी। आपने बोलना है कि वो डेट कब, वो रिपोर्ट उसने कब कराई, कहाँ से कराई, क्या वो सिंगल रिपोर्ट थी या क्या दो रिपोर्टें। अगर वो लो एचबी की रिपोर्ट थी तो उसके सिम्टम्स तो रूल आउट करो ना, उससे रिलेटेड जो जो सिम्टम्स हैं, और क्या कहीं वो हार्ट पेशेंट तो साथ में नहीं बनी हुई, या क्या वो सिम्टम्स ओवरलैप तो नहीं कर रहे उसके हार्ट के साथ, या वो एसिम्टोमेटिक है, वो सारी, और क्या ये स्लो एचबी की रिपोर्ट पे उसको क्या पता, कई पेशेंट्स 7 या 8 एचबी की रिपोर्ट लेके आए होते हैं लेकिन 4 दिन पहले उन्होंने फेरेंजेक लगवाया होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो उस चीज को उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी एंशोरोटेट्स को। तो और ये आप तभी कर सकते हो जब आप शुरू में अपने माइंड में भी और एग्जामिनर के माइंड में भी समराइज कर लेते हो या उसको पॉइंट्स दे देते हो कि ये दो मेन बातें हैं जिसपे अब आज मेरा ये केस है और मैं बात करूंगी। अगर शुरू में ही आपने समराइज नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे, और फिर ऐसा लगेगा कि जैसे शायद आपने एक एस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और दूसरे को आपने इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। तो ये इस तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो द हिस्ट्री वाज अगेन, मैं यही कहूंगी कि मे बी 60% वाली होगी, लेकिन अगर 60% वाली यहाँ करोगे तो शायद एग्जाम में 58 आ जाए, तो वो नहीं ठीक। आपने तैयारी करनी है 70% वाली। अच्छा, उसके बाद आपने एग्जामिनेशन वाज ओके, आप यू हैड फॉर एग्जांपल अगर कम टाइम था आपने सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, अब अगेन इफ देयर इज लो एचबी तो आप उसमें सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में कार्डियक एग्जामिनेशन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। तो वो ऐसा लगा कि आपने पेशेंट की अनश्योर ऑफ डेट्स को तो इम्पोर्टेंस दे दी है, लेकिन लो एचबी की रिपोर्ट को आपने शायद 70% इंपॉर्टेंस आपने अनश्योर ऑफ डेट्स को दे दिया, 30% इंपॉर्टेंस आपने उसकी लो एचबी की रिपोर्ट को दिया। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दोनों हर एस्पेक्ट पेशेंट का, चाहे वो इवन एस्थमा का एस्पेक्ट उसमें ऐड हो रहा हो, उसमें उसके साथ साथ थायराइड का एस्पेक्ट ऐड हो रहा, कोई भी एस्पेक्ट ऐड हो रहा है, आपने उसको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, राइट। सो आपने सिर्फ ये नहीं बोल देना कि आफ्टर ऑल दिस एग्जामिनेशन आई विल प्रोसीड विद द सिस्टेमिक एग्जामिनेशन एंड आफ्टर सिस्टम, इट्स नॉट लाइक दैट। सिस्टेमिक में ठीक है, लेकिन उसमें चेस्ट एग्जामिनेशन को थोड़ा सा फिर यू हैव टू इलेबोरेट इट, उतना ही इलेबोरेट करना पड़ेगा जितना ऑप्स के एग्जामिनेशन को इलेबोरेट कर रहे हो, राइट। अच्छा, उसके बाद आपने ऑप्स का एग्जामिनेशन वाज फाइन, जब आपने इन्वेस्टिगेशन मांगी, आपने इन्वेस्टिगेशन अगेन मैं ही कहूंगी ठीक मांगी, अच्छी मांगी, लेकिन आपने एक एवरेज स्टूडेंट की तरह इन्वेस्टिगेशन मांगी। आपने हर बंदा, देखो अब तो ये बात है कि एवरीवन नोज, जो भी थ्योरी पास करके आ रहा है, आप लोगों में से मेजोरिटी आई एम श्योर के वाइवे ही की तैयारी कर रहे होंगे, थ्योरी वाले तो कम ही, अभी तो थ्योरी मेरे ख्याल है इसी हफ्ते भी है, 8th को एग्जाम है इनका, परसों है शायद रिटर्न। तो आई डोंट रियली थिंक कि कोई थ्योरी वाला बच्चा यहाँ बैठा होगा, लेकिन अगेन मैं तो कहती हूँ कि इन क्लासेस में थ्योरी के भी बड़े एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं, लेकिन वही बात है कि आप लोगों में से मेजोरिटी अब वाइवे की तैयारी वाले हैं, और आई एम श्योर कि थ्योरी के हिसाब से आप सारे की, या मेजोरिटी की एटलीस्ट, थ्योरी शायद मेरे से क्या और बहुत सारे लोगों से, शायद बहुत सारे प्रोफेसर से भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, बिकॉज आप लोग कंटिन्यूसली इस प्रोसेस में हो कि पढ़ाई वाले प्रोसेस में। लेकिन एग्जाम, अब थ्योरी तो जो थ्योरी करके आ गया उसे पता ही नहीं मियाँ में क्या इन्वेस्टिगेशन मांगनी है उसको, मतलब मारिया ने बिल्कुल ठीक मांगा, लेकिन वो तो हर बंदा वहां बैठ के मांग रहा है ना, वही बात कि उसको आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आप पास हो गए, वरना पास ही नहीं होगे। वाइवे का सिस्टम ही कुछ ऐसा है अनफॉर्चुनेटली कि वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को पास करते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स या दोज हु एक्चुअली नो देयर थिंग्स फेल, सीधी सी बात है, वो लोग फेल होते हैं। सिर्फ उसमें से चंद, पूरे दिन में 2 लोग पास होते हैं,
या 4 पास होते हैं, यही पास होने का रेट है ना, तो वो जाहिर है वो वही लोग हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सो इसमें आपने जब इन्वेस्टिगेशंस मांगी, यू वर ऑल राइट, आपने बेसलाइन क्विकली मांगे, आपने निनिया का प्रोफाइल थोड़ा सा कम मांगा, उसे और एलैबोरेट करके मांगो, हर हर चीज मांगो। इफ यू थिंक दैट यू नीड स्टूल एग्जामिनेशन ऑल्सो, गो फॉर इट। इफ यू थिंक दैट यू नीड मलेरियल पैरासाइट ऑल्सो, गो फॉर। आपने निनिया का फिर पूरा, इफ यू थिंक दैट शी इज हैविंग शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ एंड यू शुड गेट एटलीस्ट ईसीजी डन, तो यू कैन इवन गेट इट डन। सो ये चीजों को उतनी इंपॉर्टेंस दो। उसके बाद अनश्योर अपडेट्स, अनश्योर अपडेट्स में आपने ऑप्स का स्कैन तो क्विकली मांग लिया, उसको थोड़ा और एलाबरेट कर लो, लेकिन उसमें ये भी थोड़ा सा करो। यस यू डिड आई थिंक आस्क फॉर द, आई डोंट नो कि आपने ग्रोथ स्कैन की बात की थी या नहीं, या आपने डॉपलर की भी बात की थी या नहीं, दैट आई डोंट नो। सो मैम डॉपलर नहीं मांगा मैंने। आपके, वो हम आगे बात करते हैं अभी कि क्या करना है क्या नहीं। तो आप आपके इसमें क्या सीरियल ग्रोथ स्कैन की क्या अभी वाला है, क्या 2 हफ्ते पहले भी हुआ था उसका स्कैन? ताकि क्योंकि आपका, आपकी इन्वेस्टिगेशन से एग्जामिनर को पता चले कि यू रियली वांट टू कैलकुलेट हर डेट्स। एक एवरेज तरीके से अगर आप मांगोगे तो एग्जामिनर भी आपको फिर आगे कंफ्यूज कर करके लेके जाएगा। आपकी हिस्ट्री के स्टाइल से पता चलना चाहिए कि हाउ ईगर यू आर टू नो हर डेट्स, और फिर आपकी इन्वेस्टिगेशंस पे, कि जब आपने अल्ट्रासाउंड मांगा है तो इट्स नॉट ओनली कि आप उसकी लाए और उसकी प्रेजेंटेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट यू नीड द मेजरमेंट्स आल्सो, मे बी बीपीडी, फीमर लेंथ, abdominal circumference, एस्टिमेटेड बेबी वेट, प्रेजेंट स्कैन भी, देन द सीरियल ग्रोथ स्कैन, मे बी 2 वीक्स पहले का स्कैन, वो आपको मांगना है। और मे बी इफ यू रियली थिंक डॉपलर इज नीडेड, तो फिर आप डॉपलर भी, ताकि बिकॉज आपकी एक ईगरनेस तो शो करे ना कि यू देखो, जब हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आता है और उसे डेट्स नहीं पता होती है, और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, अल्लाह के बाद वो सिर्फ आपको ही देख रहा है कि जी आपकी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हाउ ईगर वी आर टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट की कोई चीज रह ना जाए। डेट्स के बगैर हमें चैन नहीं आता, क्योंकि हमें नहीं अगर पता कि वो 28 वीक्स पे या 32 वीक्स पे, एक्चुअली व्हाट इफ शी इज एट 32 वीक्स लेकिन फंडालाइट 28 आ रही है, तो तो असल में तो IUGR हुआ है जो हमने मिस कर दिया ना। ठीक है, तो इससे बड़ी क्या मिस्टेक होगी एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन? तो वो वाली चीज आपकी इन्वेस्टिगेशन वर, लाइक इट वाज ऑल लाइक एवरेज, मे बी यू कैन गेट, आई डोंट नो, लेकिन आगे मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपकी ये सारी आपकी आपकी इन्वेस्टिगेशंस और आपकी एक एक उस पे, कि बेशक आपको ये छोटी से छोटी चीज भी चाहिए कि आखिर वो क्या सारा था ना इसके, टू रीच एग्जैक्टली कि आपकी आपके जो सवाल है वो आपको मिले। ठीक है, इसमें कोई कुछ ऐड करना है या मारिया ने स्पेशली कुछ और पूछना है तो बताएं। नो मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर ठीक है, फीडबैक मैम। जो वेलकम। सो इस तरीके से आपने अपनी चीज को और इम्प्रूव करना है। एक्चुअली वही बात है, यू नो ऑल द पॉइंट्स, यू आर वेरी वेरी गुड, आपकी स्पीच अच्छी थी, टाइम मैनेजमेंट इज गुड। एक्चुअली मच बिफोर टाइम ही खत्म हो रहा था, बट इवन अगर टाइम पे भी हो तो उसमें क्विकली, जिस तरह मैं शायद अपनी हर क्लास में कहती हूँ, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं तो जो नए आदत हुए हैं, आपने अपना जब तक होमवर्क ना किया हो, 2 मिनट लगते हैं आपने अनीमिया के सारे सिम्टम्स को रूल आउट करने के, एंड टू रूल आउट कि ये अनीमिया है या कार्डियक डिजीज, उसको बोलने में लेस देन 1 मिनट एक्चुअली, अगर आपके फिंगर टिप्स पे। इसी तरह अनश्योर ऑफ डेट्स के, जिस तरह मारिया ने बोला ही बड़ा मतलब शी डिडंट मिस एनी पॉइंट एक्चुअली, उसने अनश्योर ऑफ डेट्स की हर वो बात कवर की हिस्ट्री में जो कि उसको चाहिए। लेकिन वही बात है कि वो एक स्टाइल होता है ना पूछने का, वो वाले उसमें अगर आप उतना ही वेटेज उसकी HB को भी देते तो बहुत ही अच्छा लगता। और ये एग्जाम में, बिकॉज एक अजीब सा सिनेरियो होता है, दिमागी काम कई दफा नहीं कर रहा होता, अजीब हो रहा होता है, पता होता है 6 मिनट 10 मिनट बाद बेल बज जानी है, मैंने अगले स्टेशन पे जाना है, पिछले स्टेशन की टेंशन लगी होती है कि पता नहीं पिछला स्टेशन में कैसे करके आई है, दिमाग नहीं। तो जब तक आप शुरू में ही 1 to 3 पॉइंट एग्जामिनर के साथ नहीं कर लोगे ना, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की सूरत में, तब तक आप वो चीजें कवर नहीं कर सकते। ह्यूमन नेचर है, इतनी टेंशन और एग्जाम सिनेरियो में इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप हर चीज को उतनी वेटेज दे दो। तो वो तब पॉसिबल है कि शुरू में ही आपने बायोडेटा के बाद बोल दिया कि माय पेशेंट इज हियर विद दीज कंप्लेंट्स मेनली, कि वो उसकी तो डेट्स ही नहीं पता, और दूसरा उसका HB की लो रिपोर्ट है। इसी तरह हर स्टेशन पे जाके जब तक आप अपने माइंड में भी एक समरी नहीं बना लोगे, एग्जामिनर को भी नहीं पता चल जाएगा कि इसके लिए ये चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, तब तक आपकी बात आगे नहीं चल सकती। तो इस चीज की पूरी, और इट्स नॉट ओनली फॉर एग्जाम, एग्जाम तो मैं कहती हूँ सिर्फ एक 10% ऑफ योर
लाइफ है कह लो या एक ग्रूमिंग का प्रोसेस है, क्योंकि इससे भी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशंस आपको अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फेस करनी पड़ती है व्हेन देयर आर सो मेनी अटेंडेंट्स स्टैंडिंग इन योर क्लिनिक, और आपने वो पेशेंट के किसी एस्पेक्ट को आप मिस नहीं कर सकते हो। तो ये एग्जाम की ग्रूमिंग होती है विच मेक्स यू इवन स्ट्रॉन्गर, कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको अपने मरीज की किस किस चीज को कितना वेटेज देना है। तो वो जब आप एक प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में काम करने की प्रैक्टिस होती है। सो मैं तो यही कहूंगी कि ये सारी ज्यादा ड्रिल है फॉर द क्लिनिकल प्रैक्टिस इंशाल्लाह, जो आगे सारी आपने सारी जिंदगी करनी है। तो इसको इस तरह से लेके चलना है। चलो ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस में व्हेन आर यू गोइंग टू आस्क फॉर डॉपलर, आर यू रियली गोइंग टू आस्क फॉर डॉपलर और नॉट? बताए कोई इस केस में। Ma'am, एक baseline आर्या के Doppler. Ma'am, apart from the serial growth scans and all the scans that she has come with, it's important to go for the Doppler क्योंकि she's unsure of dates. एक baseline Doppler होना जरूरी है. I agree with you. Actually, Maria is right. She's at 28 weeks, for example. अभी हमने investigations की बाकी बात नहीं की ना, हमने examination की बात की कि उसकी फंडल हाइट कितनी आ रही है, कि हमें कुछ आइडिया हो कि वो कितने वीक्स पे होगी। लेकिन yes, if you really think from your fundal height that the patient is 28 or beyond, और उसकी हिस्ट्री से भी लगता है, फॉर एग्जाम्पल शी इज सेइंग दैट शी इज एट 7 मंथ एमेनोरिया और 8 मंथ एमेनोरिया, तो दो डॉपलर करा लेने जरूरी है। एक 28 वीक्स और जो आपके हिसाब से पेशेंट का 28 वीक्स बनता है और 32 वीक्स बनता है, उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा एसडी रेशो और ग्रोथ का मजीद पता चल जाएगा। बिकॉज अगेन आप जिस पेशेंट में डेट्स और फंडल हाइट ही आपकी नहीं रिलायबल, तो उसमें फिर आगे डॉपलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे डॉपलर की बात कर लेते हैं। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होती है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड कब मांगना है और कब नहीं, और ये वो सेंसिटिव बातें हैं एग्जामिनर के लिए कि अगर आपने किसी केस में डॉपलर मिस कर दिया तो दे स्टार्ट कंसिडरिंग कि शायद हमें इस कैंडिडेट को पास नहीं करना चाहिए, या किसी में अगर आपने एक्स्ट्रा मांग लिया तो फिर तो कंसिडर भी नहीं, वो फेल ही कर देते हैं, राइट। तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आपने किस में डॉपलर मांगना है और किस में आपने नहीं मांगना। एक छोटी सी टिप है इसके लिए, देखो एंड अगेन वही बात है कि यही सारी टिप्स आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इंशाल्लाह काम आएंगी। टिप ये है कि जिस पेशेंट के अंदर आपकी फंडल हाइट कोरिलेट नहीं कर रही उसकी जेस्टेशनल एज कैलकुलेशन से, फॉर एग्जांपल इफ पेशेंट इज सेइंग अकॉर्डिंग टू हर एलएमपी, एक और पेशेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू हर एलएमपी इफ शी इज एट 32 वीक्स बट यू थिंक दैट हर फंडल हाइट इज लेस फॉर डेट्स, फॉर एग्जांपल फंडल हाइट is like 30 weeks or 28 weeks, definitely you'll go for Doppler. Similarly, if patient is at 32 weeks of gestation from her LMP and fundal height comes out to be 36 weeks or even more or 34 weeks, तो again देखो discrepancy आ गई ना fundal height और dates में, तो you need Doppler. Why? Because अगर fundal height ज्यादा भी है, it's a macrosomic baby or polyhydramnios or fibroid, it's or twins, any condition which leads to increased fundal height, वो सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें यू डोंट नो कि पेशेंट बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, या बेबी के प्लेसेंटा का ब्लड सप्लाई कैसा है, तो उस केस में भी आप डॉपलर मांगोगे। सो डॉपलर सिर्फ लेस फंडल हाइट वाले पेशेंट में नहीं मांगोगे, डॉपलर आप मोर फॉर डेट्स वाले फंडल हाइट में भी मांगोगे, क्योंकि पॉलीहाइड्रोएमनियोस में अगर फंडल हाइट ज्यादा है यू डोंट नो कि बेबी का साइज क्या है, आपकी साइज की असेसमेंट। सिमिलरली वेरी वेरी ओबीस पेशेंट या इंक्रीज्ड बीएमआई वाला जो पेशेंट होता है, मॉर्बिडली ओबीस जो पेशेंट है, उसके अंदर भी एट टाइम्स फंडल हाइट और बेबी के जो ग्रोथ है वो इतनी बहुत रिलायबल नहीं भी होती है टाइम। सो उसमें भी आप डॉपलर मांग सकते हो टू नो एग्जैक्टली के उसकी ब्लड सप्लाई प्लेसेंटा की वो सारा कुछ ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है। सिमिलरली अनश्योर ऑफ डेट्स, देयर इज नो हार्म कि अनश्योर ऑफ डेट्स में भी एक बेसलाइन आप 28 और 32 वीक्स पे मांग लो। अगर 28 32 वीक्स का ठीक जा रहा है तो फिर आगे हर दफा डॉपलर कराने की जरूरत नहीं होती। डॉपलर सिर्फ उसके अंदर कराने की जरूरत होती है जिसमें आपका स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज हो, या एसडी रेशो ज्यादा हो, या रिवर्स या एब्सेंट एंडास्टोलिक, जो कि हमारी आईयूजीआर की गाइडलाइन में है कि किस तरह से सीरियल डॉपलर कराना है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड अगर आपका बेसलाइन वाला 28 32 वीक्स का ठीक है तो और तो फिर आप उसको और ज्यादा सीरियल कराने की जरूरत नहीं होती, एक चीज। दूसरा जो गाइडलाइंस है डायबिटीज और हाइपरटेंशन की, क्रॉनिक डायबिटिक और क्रॉनिक हाइपरटेंसिव में भी आप एक 28 वीक्स और 32 वीक्स पे स्कैन कराते पे डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हो, बेशक उसकी फंडल हाइट ठीक जा रही हो या
आपको विद डेट सब कुछ कोरिलेट कर रहा हो, उसके बावजूद इसलिए कराते हैं बिकॉज क्रॉनिक डायबिटिक एंड क्रॉनिक हाइपरटेंसिव हैव मोर टेंडेंसी टू गेट माइक्रोवास्कुलर डिजीजेस। उनके प्लेसेंटा के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए गाइडलाइन कहती है कि आप उनका भी 28 और 32 वीक्स पे करा लो। अगर 28 32 वीक्स का ठीक डॉपलर आता है तो यू डोंट नीड टू कंटिन्यू की डूइंग द सीरियल डॉपलर स्कैन स्टैंड, राइट। सो ये दो तीन बातें हैं। सबसे बड़ी टिप इसमें यही थी कि जहां पे फंडल हाइट और डेट्स की डिस्क्रिपेंसी आ जाए वहां पे आप डॉपलर मांग लोगे, ठीक है। सो ये चीज, और कुछ इसमें ऐड करना है या कोई कंफ्यूजन, ये यहीं क्लियर कर लो। डॉपलर पे बड़ी बहस होती है, जैसे गायनी के केसेस में सीटी और एमआरआई पे बड़ी बहस होती है ना, कि किसमें सीटी किसमें एमआरआई, किसमें क्यों नहीं क्या कराया। क्योंकि ये वो इन्वेस्टिगेट, अव्वल तो आपका वाइवा, आपका इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड वाइवा होना चाहिए कि बाय द एंड यू आर डन विद योर हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन। एग्जामिनर आगे की बात करे, यू शुड बी सो गुड कि आपकी इन्वेस्टिगेशंस पे कोई सवाल ना करे, आपकी हिस्ट्री में कोई बात पॉइंट आउट ना की जाए बात, या आपकी एग्जामिनेशन पे कोई कमेंट ना किया जाए। बेस्ट वाइवा और फ्रैंकली पास होने वाला वाइवा वो है जो कि इन्वेस्टिगेशंस आपने मांग ली, वहां खत्म किया, वाइवा आगे शुरू हो रहा है मैनेजमेंट से, ठीक है। सो दैट वाइवा इज द बेस्ट वाइवा एक्चुअली। इसकी तैयारी आपने घरों में करनी है, वो मैं आपको दोबारा बार बार रिपीट करूंगी, उसकी क्लास अलग लेनी पड़ेगी कि ये हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन को किस तरीके से परफेक्ट करके जाना है कि वाइवा मैनेजमेंट से स्टार्ट हो। एक एक करके क्वेश्चन, सोमिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम वालेकुम। किसी पेशेंट की डेट्स अनश्योर होती है, उसने लैक्टेशनल एमेनोरिया में कंसीव किया, तो अगर डेटिंग स्कैन से हम उसको करिस्पॉन्ड करें तो, अगर क्योंकि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो आते ही 7 मंथ पर हैं, कुछ एंटीनेटल वर्कअप नहीं हुआ यही होता तो केस डायरेक्ट। है, ये तो आज का केस है, अभी आगे मैनेजमेंट करनी है कि उसकी अगर डेट मैडम, कैसे पता करेंगे जी। अगर यही केस होता जिसमें हमें एलएमपी ना दी हुई होती लेकिन वीक्स दिए हुए होते हैं, और सॉरी एलएमपी ना दी हुई थी लेकिन 7 मंथ्स का दिया हुआ था, हमें खुद एलएमपी पूछनी है उससे पेशेंट से, क्योंकि हमारा हाँ, एक सिनेरियो आया था, जाहिर है डायबिटीज, जी। क्रॉनिक डायबिटिक थी, हाइपरटेंसिव थी, उसको एलएमपी आज उससे हमने निकाले, शी वाज 24 वीक्स जब हमने एलएमपी के अकॉर्डिंग निकाली, क्योंकि उसकी साइकिल बिल्कुल रेगुलर थी। अकेले के साइकिल उसकी रेगुलर नहीं होती, तो मैडम हम डेटिंग स्कैन पे अगर उसका हुआ है तो डेटिंग स्कैन से हम निकाल सकते थे उसकी। जाहिर है, if you don't have LMP then dating scan is a very good and reliable method। 8 to 13 वीक स्कैन जो है उस पे आप लेके आप उसकी कैलकुलेट करो जेस्टेशन लेमनोरिया। if you are that lucky that your patient has got the dating scan all done, वरना तो डेटिंग स्कैन भी ना हो तो केस तो वो है, ठीक है जी। मरियम। मैडम ये एक जो सीरियल ग्रोथ स्कैन होता है जिसपे हम एम्फोसाइज करते हैं एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस और एस्टिमेटेड फीटल वेट पे, तो कभी कभी तो रूटीन ऑफ स्कैन पे भी एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस और वेट दिया होता है, तो दोनों में किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि ये नहीं, सीरियल वो ग्रोथ स्कैन है असल या में जो रूटीन? रूटीन अल्ट्रासाउंड होता है वो एक दफा का होता है। सीरियल ग्रोथ स्कैन 2 वीकली होते हैं, राइट। ग्रोथ ओके स्कैन मैम। कहा जाता है जो सीरियल कराया जाए, सीरीज में देखा जाए, तो वो 2 वीकली देखा जाता है, ठीक है जी। सुरैया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वेलकम। मैडम हम डॉपलर मांगेंगे, फिर एग्जामिनर कहेगी आपको डॉपलर में क्या क्या चाहिए, हम लोग कहेंगे हमें डायस्टोलिक फ्लो है या नहीं है। मैडम किस तरह से डॉपलर में क्या क्या आप मांगे कहोगे थोड़ा सा मुझे बता एसटी दें। रेशो, मुझे आप कहोगे टू रूल आउट प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, अगर वो और आपसे अव्वल तो वो पूछेंगे नहीं, अगर वो आपसे और पूछना चाह रहे हैं मैडम कि पूछते हैं, आप, हाँ मैडम तो पूछते पूछो हैं। तो ना। हाँ ठीक है, तो उसमें फिर आप कहोगे कि एसटी रेशो के लिए, दैट इज इट। ठीक है। एंडास्टोलिक फ्लो और एब्सेंट और रिवर्स का तो जिक्र ही नहीं करना, बस एसटी रेशो मांगो आप, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ठीक 20 है। वीक्स का है तो चलो आप यूट्राइन आर्टरी की नोचिंग मांग लो, इसमें तो आप ठीक है। फिर अम्बिलिकल आर्टरी की एसटी रेशो बस मांगोगे। ठीक है। और अगर मैडम वो एस डी एसटी रेशो रेशो, में। सॉरी एक मिनट, अगर वो एसटी रेशो ज्यादा दे देता है फिर आप उसमें बात करोगे कि एब्सेंट या रिवर्स एंडास्टोलिक फ्लो। ठीक है। ठीक है मैडम। और उसकी वो कितनी मैडम वैल्यू बताएगी एस डी रेशो की, वो तो हर मतलब वीक के हिसाब से हर वो है ना, डिफरेंट है, 30 डिफरेंट वीक्स के होगी। बाद और है ठीक। वो, हाँ। ठीक है। ठीक है थैंक जी, यू। आमना। मैम वेलकम। जैसे फीटल बायोमेट्री का स्कैन होता है उसमें एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस हेड सर्कमफेरेंस की डिस्क्रिपेंसी से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि बेबी आईयूजीआर की तरफ है। जैसे ये अनश्योर ऑफ डेट के साथ आई है तो पहले हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि फीटल बायोमेट्री स्कैन करवाएंगे, उसमें अगर एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस दूसरों से कोरिलेट नहीं कर रहा तो फिर हम डॉपलर की तरफ जाएंगे, या डॉपलर भी हम साथ ही साथ मांग बेसलाइन, लेंगे।
है बेसलाइन उसकी fetal कराने में, ये biometric बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन के अगर तो आपको लगता है कि सीरियल ग्रोथ स्कैन्स ठीक जा रहे हैं तो भी क्या डॉपलर कराएंगे या नहीं कराएंगे अनश्योर ऑफ डेट्स में, यही क्वेश्चन है ना आपका? जी मैम। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके अंदर दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। मेरा तो वैसे ये ख्याल है, और मैंने जो और भी डिस्कशंस वगैरह में अटेंड की उसमें कि एक बेसलाइन 28 वीक्स और 32 वीक्स जो आपको अपने हिसाब से लगता है कराने में कोई हर्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट आई ही आपके हिसाब से फंडल हाइट 32 वीक्स है या 30 वीक्स है और आपके रिसेंट स्कैन के मतलब आपने जो भी देख लिया उसके मुताबिक 32 वीक्स ही बन रही है, तो देर इज नो हार्म कि आप उस वक्त का बेसलाइन एक डॉपलर साथ ही मांग लो, right? Because जी you मैम। don't know you don't really need to wait for another 2 weeks for the serial growth scan to decide कि आपको उसकी एसडी रेशो करानी है या नहीं करानी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत लेट हो जाए, राइट? क्या पता आपकी फंडल हाइट 32 वीक्स है, स्कैन आपको 32 कह रहा है, बट सीरियल ग्रोथ तो 2 हफ्ते बाद होगा ना। तो लेकिन डॉपलर पे एसडी रेशो ज्यादा चल रही है और आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो। तो जहां पे भी आपको कंफ्यूजिंग कोई चीज लग रही है रिगार्डिंग योर फंडल हाइट एंड डेट्स, उसमें बेसलाइन डॉपलर मांग लेना इज विल कीप यू सेफ। एग्जाम में भी और जी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी सेफ रहना ही बेस्ट प्रैक्टिस है। जी मैम। मैम इसलिए सीरियल तो बाद मतलब 2 हफ्ते के बाद होगी, लेकिन जो फर्स्ट स्कैन अभी आई है मेरे पास 7 मंथ पे मैंने करवाई, उसमें अगर बायोमेट्री में डिफरेंस आ रहे हैं, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस कुछ अलग डेट हाँ, बता रही है, हेड सर्कमफेरेंस कुछ अलग बता रही है, तो उसमें मैं डॉपलर जस्टिफाई भी करूं, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन ये है अदरवाइज भी कि कर हमें सकते हो, अदरवाइज भी कर अच्छा सकते हो। अदरवाइज एक ये बेसलाइन में। कि जी बेसलाइन डॉपलर और उसमें कोई हर्ज नहीं होता, बिकॉज जितना भी कर लें, देखो सेंसिटिविटी ऑफ अ प्रेजेंट अल्ट्रासाउंड एट 7 or 8 month इज लो टू डिसाइड द डेट्स, जी मैम। नंबर वन। जी नंबर टू, मैम। sensitivity of fundal height to decide dates at any stage is low, right? It's less than जी 20% if I'm not wrong, which is very very low। और ये जो डेट्स हैं ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट फैसला कर रही हैं। सो देर इज नो हार्म कि आप एक बेसलाइन डॉपलर भी देख लो कि उसकी प्लेसेंटल सप्लाई और सब कुछ ठीक है, और फिर अकॉर्डिंगली आप लेके चलो। जी मैम, बस यही आपकी बट जो एट द सेम आंसर है टाइम ना, मैंने एट द सेम टाइम इसको मैंने लेकर आपसे कहा मैं कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकती हूँ कि कर मैं पेशेंट सकते को हो, ये कॉस्ट क्यों दे रही हूँ। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल, लेकिन अगेन दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। वही बात है कि अगर आप कहो कि मैं अभी नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सेफ प्रैक्टिस में बेहतर है कि आप बेसलाइन डॉपलर करा लो इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ डेट्स एट 7th or 8th। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम जी। आमना क्विकली क्वेश्चन फिर मैनेजमेंट करेंगे। मैम मैम मेरा यही क्वेश्चन था जिसका भी आपने आंसर किया है। हाँ ये बड़ा अच्छा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, इसको आप इस तरह जस्टिफाई, वही बात है कि बहुत सारी चीजें जो गाइडलाइन में हार्ड एंड फास्ट नहीं दी हुई उसमें आप हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हो, डॉपलर ना कराने को भी जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन अगेन सेफ प्रैक्टिस में इट्स बेटर। बिकॉज वही बात है कि फंडल हाइट और अल्ट्रासाउंड एट 7th or 8th month they have less sensitivity to decide the dates of patients, so आप अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है। नाउ क्विकली लेट्स मूव टू द मैनेजमेंट। जी मारिया, मैनेजमेंट करते हैं। मैं आपको इन्वेस्टिगेशन जल्दी से बता देती हूँ। फंडल हाइट आपकी पेशेंट की आ रही है 30 वीक्स। आपका पेशेंट का जो अल्ट्रासाउंड है वो भी 30 वीक्स को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। और क्या चाहिए आपको? Okay, ma'am. डॉपलर Ma'am, उसका नॉर्मल है। her recent CBC with the red cell and dices, hemoglobin with red cell. HB पेशेंट की 8 है, ठीक है। शी इज एसिम्प्टोमेटिक विद 8 HB और इट्स माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। Okay, ma'am. And fine. Ma'am, मैं start करूँ management? जी प्लीज। I will first counsel the patient regarding the risk factors associated with her pregnancy. That number one, she is unsure of dates. सॉरी मारिया, आपका म्यूट हो गया। Sorry, ma'am. Okay. जी I will start off my management by counseling the patient regarding the risk factors associated with her pregnancy. That number one, she is unsure of dates, so it will be difficult to time her delivery. Second, her pregnancy is associated with anemia.
with its own maternal and fetal implications. The maternal implications such as all the time, if her HB is not being corrected, then she's at risk of infections, preterm labor pains leading to premature delivery, and the fetal would be at risk of growth restriction, and furthermore, because of preterm delivery and ICU admission and so on. So we need to address her low HB issue also in the management. And for first, I will since her symphysiofrontal height and the recent scan both are showing the gestational age of 30 weeks, so I will declare her as 30 weeks gestational age, and will monitor her growth 2 weekly via growth scans along with the baseline Doppler that has already been done, and will call her 2 weekly in OPD, and in each OPD visit I will reevaluate her history in terms of her signs and symptoms along with her vitals monitoring, plus will examine her abdomen for the fundal height, for the estimated fetal weight, amount of liquor, and for the fetal heart sounds as well. And I would like to take her pregnancy at close to term as possible. And then at around 36 weeks, when according अच्छा to her एक सेकंड gestational यहाँ पे, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। अब अनीमिया का आप क्या कर रहे हो साथ में? 36 वीक से पहले उसका, 30 वीक से अनीमिया का भी तो कुछ करो ना। जी मारिया, हेलो जी मारिया, हाँ म्यूट हो गया आपका फिर से। सॉरी मैम। कोई बात नहीं। मैम आपने अनीमिया को meanwhile I will yes मैम, मैं हमेशा एनीमिया को भूल रही हूँ। आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द अनश्योर ऑफ डेट, सॉरी। वो वही बात कि अपने माइंड में शुरू में ही डिफरेंट सेगमेंट्स बना लो कि इसमें ये 2 बातें या 4 बातें हैं। उसमें देखो, इवन अगर मरीज आपका यूटीआई के साथ भी है, यू मिस यूटीआई इन योर मैनेजमेंट, तो आपकी तो मैनेजमेंट ही गलत करार दे दी जाएगी। वैसे भी पेशेंट सोचो क्लिनिक में आई है एंड यू आर कॉन्स्टेंटली मिसिंग यूटीआई, फायदा क्या उसका आपके पास आने का? छोटे से Yes, ma'am. छोटा एस्पेक्ट भी पेशेंट का आप मिस नहीं कर सकते। Yes, ma'am. जी, एनीमिया तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। खैर, Yes, ma'am. Ma'am, meanwhile, I will take dietitian review and put her on rich protein and iron-rich diet, explain her the dietary importance, and then will put her on oral iron BD, and will repeat her HB in the next 10 days. If there is a rise in the hemoglobin, then I will like to continue with the BD dose of the oral iron. So yeah, and meanwhile, I will also explain her the side effects of taking the oral iron, that she may complain of abdominal pain, constipation, or diarrhea, and when to take the oral iron in between meals and not on empty stomach, and not with any calcium or supplement tea or coffee. If with this oral iron, her HB is continue to be rising along with her dietary intake, then we'll continue with the oral iron, and when she reaches the HB of 10 grams per deciliter or more, then we can shift her to OD iron dose. And meanwhile, she will be coming to the OPD 2 weekly with the growth scans, and in each visit, I will reevaluate her history for the एक signs मिनट and में symptoms. करेक्ट करूंगी क्योंकि अभी आपका ऐसा पूरा वो मॉक तो नहीं है हो रहा, इसलिए मैं आपको साथ साथ ही करेक्ट कर रही हूँ। हाँ, देखो आपने एनीमिया की मैनेजमेंट, बात वही है, आप कर ठीक रहे हो, लेकिन शायद 60 या लेस देन 60%। 60 का मतलब भी इस स्टेज पे मैं फेल इसलिए कहूंगी क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन शुड बी 70, एक्चुअली 70%। इस तरह नहीं। देखो आपने ये तो बात पूछो ना, ठीक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डिक्लेयर हो गया। 2-3 चीजें आपने, आपकी मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया किन बातों पे डिपेंड कर रही है, वेदर शी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक, व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इज इट। ये 2 बातें सिनेरियो में बता दी गई थी कि शी इज एसिम्टोमेटिक एंड शी इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और किस बात पे आपकी बात मैनेजमेंट डिपेंड कर रही है? आपकी मैनेजमेंट डिपेंड कर रही है कि क्या अब तक वो ओरल आयरन लेती आई है या नहीं। अगर वो लेती आई है तो आप उससे आगे की मैनेजमेंट करो। नंबर 4 ये कि
चलो जेस्टेशनल एज, बट अगेन यू आर अनश्योर कि वो कितने, उसका कितना टाइम बाकी है डिलीवरी में। अगर 8 HB 38 वीक्स पे आए हो तो अलग मैनेजमेंट है, 8 HB 30 वीक्स पे अलग मैनेजमेंट है। ये बात आपकी ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया बोलने की जरूरत है कि उसके पास आप एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन आपके पास कितने हफ्ते हैं इसकी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा ये कि उसका HB आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसको हुआ क्यों, कहीं उसको वर्म इन्फेस्टेशन थी, क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकती है ओरल आयरन की गोलियां, या क्या वो वेजिटेरियन है, या मतलब शी कैन नॉट हैव मीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या आयरन रिच जो प्रोडक्ट्स है वो नहीं ले सकती, या क्या। ये 4-5 चीजें हैं जिसके बारे में बोले बगैर आप पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लिए। सो जब आप एग्जाम में भी, बिकॉज अब है फोकस्ड वाइवा, स्ट्रक्चर्ड वाइवा, या ये जो एक्सटेंडेड टॉक्स के नाम का एग्जाम हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने वो 10 मिनट में, अगर 1 मिनट में एनीमिया की मैनेजमेंट कर रहे हो या 2 मिनट में मैनेजमेंट कर रहे हो, तो आपने ये 6 बातें बोल के मैनेज करना है एग्जामिनर के सामने। ये वो घंटे वाला एग्जाम नहीं है कि आप उसको, वैसे तो उसमें भी आपने टाइम से ही करना होता था, लेकिन अगेन इसमें आपने हर चीज को आपने इस तरीके से बोलना है कि माय पेशेंट इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड शी इज एसिम्प्टोमेटिक फ्रॉम हर फंडल हाइट एंड हर रीसेंट अल्ट्रासाउंड he is at 30 weeks, which means that she at least has around 8 to 10 more weeks ahead to reach term or to reach the time of delivery. तो 8 से 10 हफ्ते जब आपने एग्जामिनर, आपने एग्जैक्टली 8 हफ्ते, एग्जैक्टली 10 हफ्ते आप तब बोलते हैं जब वो श्योर ऑफ डेट्स होती है। जब आपने 8 से 10 हफ्ते बोल दिए, इसका मतलब ये है कि आपके पास एडिक्वेट टाइम है उसकी नीमिया को ट्रीट करने के लिए। फिर आप बोलोगे कि शी हैज नेवर टेकन ओरल आयरन बिफोर, या शी हैज टेकन ओरल आयरन बट शी इज इंटॉलरेंट, या शी इज अ वेजिटेरियन, शी इज नॉट गुड एट हैविंग मीट और एनीथिंग लाइक दैट। कुछ तो बोलो ना इस बारे में। तो आप कहोगे कि she has not taken oral iron before, तो I will start her with this, with double iron। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं पहले उसको रूल आउट करूंगी कि क्या उस ओरल आयरन लेती रही है या नहीं, और अगर वो इंटॉलरेंट है तो डेफिनेटली फिर IV आयरन का रोल है। उसके बाद उससे ये एक स्टेटमेंट में बड़े आराम से, ये 30 सेकंड से कम टाइम में ये 5 बातें बोली जा सकती हैं कि माय पेशेंट इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, शी इज एसिम्प्टोमेटिक, she is at 30 weeks of gestation from ultrasound and from fundal height, which means that which means that she has at least 8 to 10 more weeks ahead to reach term. And so, and also I've ruled out that she has not taken oral iron before because maybe she never got it from the market, or she was careless about it, or etc. So I will advise her with the oral iron and with good diet। डाइट सोर्स खोल दो और ओरल आयरन आपने बड़ा अच्छा बोला वीडियो में, और फिर मॉनिटर करोगे either 10 days के बाद या 2 weeks बाद। you will repeat her HP, and if you really find that the HP is increasing, तो फिर आप उसको, और अगर आप इस चीज को इस तरह से भी आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी कि आप साथ साथ अनश्योर ऑफ डेट्स को लेके जा रहे हो और साथ साथ HB को लेके जा रहे हो। आपने अगले विजिट पे क्या क्या करना है 30 वीक्स पे, अकॉर्डिंग टू अस अगर वो 30 वीक्स पे, तो 30 वीक्स पे आपने उसको ओरल आयरन स्टार्ट की सारे प्रोसेस के बाद, और आपने उसकी बेसलाइन अल्ट्रासाउंड और डॉपलर करा लिया। फिर 2 वीक्स बाद आपने उसे क्लिनिक पे बुलाया, तो क्या क्या करोगे, अगेन स्टार्ट विद द हिस्ट्री में स्पेशली फीटल फंडल क्या कहते हैं फीटल मूवमेंट्स की बात करेंगे, कोई पेन्स वगैरह तो नहीं आ रही, एनीमिया के सिम्टम्स को दोबारा रूल आउट करेंगे, और उसके बाद एग्जामिनेशन पे फंडल हाइट दोबारा देखेंगे, इट शुड बी राइजिंग। इन्वेस्टिगेशन में आपने HB दोबारा रिपीट करा के देख लेना, और स्पेशली द ग्रोथ स्कैन, राइट। तो अगर आप इस तरीके से बोलोगे दोनों चीजों को साथ लेके जाके कि 2 वीकली अब वो एंटीनेटल विजिट्स पे आ रही है, और 2 वीकली क्या क्या देख रहे हो, अनीमिया के लिए उसके सिम्टम्स रूल आउट कर रहे हो, आप उसकी एग्जामिनेशन में आप उसका पैलर और फंडल हाइट उसका देख रहे हो, और उसके अलावा आप उसका इन्वेस्टिगेशन में स्पेशली HB, और आप उसका अगर अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, इस तरीके से अगर लेके चलोगे ही तो होगा। ये ना हो कि एग्जामिनर को बोलना पड़े कि फलाना एस्पेक्ट के लिए क्या करोगे, एंड देन व्हेन यू हैव रीच्ड 36 वीक्स देन यू गो बैक एट 30 वीक्स, क्या हाँ 30 वीक्स पे तो मैंने उसका HB रिपीट कराया था, या मैंने 30 वीक्स पे उसे कहा था कि 2 वीकली भी आए तो मैं हर वीक 2 वीक विजिट। इट्स नॉट लाइक दैट, यू आर नॉट गोइंग टू बी गिवन मार्क्स फॉर दिस, आई एम टेलिंग यू। अगर आप 36 या 38 वीक्स पे पहुंच गए और एग्जामिनर ने आपको याद कराया कि आपने HB के लिए क्या किया या आपने UTI के लिए मरीज के लिए क्या किया था, तो आप कहोगे कि नहीं 32 वीक्स पे जब वो आई थी तब मैंने उसका यूरिन कंप्लीट कराया था।
सुन लेगा एग्जामिनर, बट यू विल नॉट बी गिवन एनी क्रेडिट फॉर इट, यू कैन नॉट बी गिवन, देना ही नहीं चाहिए। पेशेंट जब 38 वीक्स पे आ गया तो आपसे बात अगर वो कर रहा है कि ये एस्पेक्ट मिस हुआ था तो 32 पे क्या किया था, तो ये बच्चों वाला एग्जाम है ही नहीं। क्यों 10 12 15 या 30 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 2 पास होते हैं उस दिन में? क्योंकि वंस द पेशेंट इज एट 38 वीक्स, यू कैन नॉट से कि मेरे पास जब वो 2 हफ्ते के विजिट पे आई थी मैंने ये करा लिया था, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो आपको हर अगले विजिट पे पता होना चाहिए कि ये मेरा मरीज है, इसको मैंने 2 वीक्स के बाद बुलाया, 2 वीक्स के बाद मैंने इसका हेड टू टू हिस्ट्री से इन्वेस्टिगेशन तक क्या क्या करना था फोकस्ड। जाहिर बात है 32 वीक्स पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग तो नहीं आप लेके बैठ जाओगे ना, सिर्फ फोकस 4 बातें हिस्ट्री में, क्योंकि ये अनश्योर ऑफ डेट्स है और क्योंकि ये एनीमिया की पेशेंट है तो एनीमिया के सिम्टम्स रूल आउट करूंगी, ये इन्वेस्टिगेशंस में मैं यही, राइट। तो आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। सो तभी जी मैम। आपकी कोई पास होने का होता है। अच्छा, गुड। सो आप यू वर टेकिंग बहुत अच्छे अनश्योर ऑफ डेट्स, आप बहुत अच्छा लेके जा रहे हो, विच इज वेरी गुड। सो यू वर सेइंग दैट पेशेंट हैज रीच्ड 36 वीक्स, अब बताओ। Ma'am, at 38 weeks, she can be 36, plus minus. Sorry, ओके, अच्छा मैम ठीक है। आपका नाउ यू हैव पेशेंट इज विजिटिंग यू फ्रॉम 30 वीक्स टू वीकली, और आप 2 वीकली उसको लेके चल रहे हो, आगे क्या करोगे? Ma'am, then I will try to take her pregnancy as close to term as possible, like between 37 and 38 weeks. I will discuss with the patient that at this time she can very well be at plus minus 3 weeks. Like at 37 weeks, she can be at 34 weeks if we minus 3 weeks, and she can be at 40 weeks also. So I will discuss with her. According to me, at 37 plus 6 weeks, we should plan her delivery via induction of labor. And if she does not agree एक with मिनट her, यही रोकूंगी, यू ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, एक चीज एग्जाम के लिए भी और एक चीज आपके इंशाल्लाह लेटर ऑन क्लिनिक्स या जहां भी आप डिपार्टमेंट में बैठे हो या राउंड कर रहे हो, देखो एज ए सीनियर जब आप एज ए सर या एपी जब वार्ड का राउंड कर रहे होते हो तो आपके जो ऑर्डर्स हैं बस वही ऑर्डर्स हैं उस मरीज के लिए, वही आपको पता है कि आपका एपी राउंड करके जो कह गया वही, वो उस मरीज की वही मैनेजमेंट है, वो लिख दी गई एडवाइस पे फलाना बंदा, but that advice should be so focused and it has to be correct, otherwise इतने मरीजों में वो मिसमैनेज हो जाएगा ना। यू कैन नॉट से क्लिनिक पे बैठ के अगर आप मरीज से कह रहे हो कि आई विल डिस्कस विद हर बिटवीन 37 एंड 38 वीक्स, आगे से जितनी भी पढ़ी लिखी पेशेंट हो वो आगे से कहेगी कि मतलब 37 38 वीक्स, एट टाइम्स इवन अगर आप एग्जाम में एग्जैक्ट डेट बोलो कि इस डेट पे मैंने ये फैसला करना है फ्रॉम हर एलएमपी, आप ये कहते हो कि फॉर एग्जांपल किसी मरीज की ईडीडी बन रही है 1 जून एंड यू आर प्लानिंग कि आपने उसकी 39 वीक्स पे कुछ करना है, तो आप मरीज से कहते हो कि आपने 23 मई को मेरे पास आ जाना, बिकॉज यू नो कि 39 वीक्स कब बन रहे, राइट। यू कैन नॉट से कि अच्छा 39 लेट्स डिस्कस इट बिटवीन 38 टू 39 वीक्स, वो कहेगी कि क्या मतलब है व्हाट 38 टू, मुझे क्या पता 38 से 38 और व्हाट डू यू मीन पूरे एक हफ्ते की रेंज आप मुझे दे रही हैं एग्जैक्ट। देखो ऑप्स के अंदर एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन आपको एग्जैक्ट डेट्स की बात करनी है, ये नहीं मुझे समझ आ रही कि 39 कंप्लीटेड वीक्स क्या होता है, 37 कंप्लीटेड वीक्स क्या होता है, 37 टू 38 वीक्स। आपने तो एग्जैक्ट डेट बतानी है पेशेंट को कि 23 मई को आपने मेरे पास आना है, विल सी फिर विल डिस्कस, या आपने फलानी डेट को आना है मेरे पास। आपके अपने अंदर की दिल की बात है कि 37 वीक से आपका क्या मतलब है या 38 वीक से आपका क्या मतलब है, राइट। सो द होल आंसर वाज वेरी कंफ्यूजिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। इन सारी चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप डेक्सा कवरी देना भूल गए, क्योंकि वी डोंट नो कि हम थोड़ा सा फ्रीडम में उसे कर दें। वही आप मारिया वाली बात कि 3 वीक्स प्लस माइनस है, हम जहां भी खड़े हैं मैं बता रही हूँ ये अनश्योर ऑफ डेट्स वैसा ही टॉपिक है जैसा नीमिया टॉपिक है। इट इज सो कंफ्यूजिंग इन एग्जाम, जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं होती एग्जाम में, आई डोंट थिंक एनीवन कैन रियली पास दिस थिंग इफ योर पेशेंट इज रियली अनश्योर ऑफ डेट्स। उसको किस तरह से लेके चलना है, ये जो हवाओं वाली बातें हैं ना, व्हेन शी रीचेस 37 वीक्स, व्हेन शी रीचेस, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, और अगर आप एग्जाम में वो डेट भी बोल दो अपने हिसाब से, आपने कैलकुलेशन की हो कि आपके हिसाब से फलानी डेट पे इसकी डिलीवरी बनेगी, तो इससे 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले इस डेट पे, तो ये और बहुत अच्छा क्रेडिट आपको जाएगा, यू नो।
हर केस में, इवन व्हेन शी इज श्योर ऑफ डेट्स, आप उस अगर आप उसे कहोगे कि एग्जामिनर को कि पेशेंट की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फॉर एग्जांपल 1 जून है, और मैंने भी इसकी 39 वीक्स पे डिलीवरी अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर एनी रीजन, या सिजेरियन प्लान कर रहे हो, प्रीवियस 3 है, और आप 39 वीक्स पे कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि 39 वीक्स विच कम्स आउट टू बी 23 मई, तो इट विल मेक यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट? वही बात है कि शायद 39 वीक्स हर बंदा वहां बोलेगा, लेकिन 39 वीक्स का मतलब क्या है वो शायद 1 या 2 बंदे बोलेंगे। तो अब, और इसी तरह आपको क्लिनिक पे बैठ के करना होता है। आप क्लिनिक पे, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट और पेशेंट आपकी हो, पेशेंट खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, आप उससे नहीं कह सकते कि 39 वीक्स पे आना है आपने। आप उसको भी डेट साथ बताओगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी, दोनों के बीच में सेम क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट डज 39 वीक्स मीन, ठीक है? इसी तरह एग्जाम में आप कैंडिडेट और एग्जामिनर की दोनों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका मतलब क्या है। तो इस वजह से, अच्छा, अनश्योर ऑफ डेट्स का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। मारिया वाली बात बिल्कुल ठीक थी कि 2 वीकली ग्रोथ स्कैन कराते हुए लेके जाएंगे। एज क्लोज टू टर्म हम इसमें कह नहीं सकते, बिकॉज वी डोंट नो कि वो टर्म पे कब होगी। शी इज अनश्योर ऑफ डेट्स, तो आप कहोगे कि ठीक है 36 वीक्स पे जाके, फॉर एग्जाम्पल, अब आप ये ना कहोगे वो 36 वीक्स पे, आप कहोगे कि अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अल्ट्रासाउंड शी इज एट 36 वीक्स, क्योंकि हम अब फंडल हाइट और जो डेट्स मैंने 30 वीक्स से लेके चली थी उस हिसाब से अब ये 36 वीक्स पे आ गई है। बट अगेन 36 वीक्स मीन्स के प्लस माइनस 3 वीक्स, मे बी 33 वीक्स और मे बी 39 वीक्स। तो 36 वीक्स पे जब आपके हिसाब से वो आ गई है, तो फिर आप 2 वीकली विजिट्स को आप 1 वीकली विजिट कर दोगे, राइट? तो 1 वीकली विजिट में अगेन जब वो 37 वीक्स पे आएगी, तो यू विल गिव ऑप्शन टू हर। उसको आप कहोगे आफ्टर ऑफ कोर्स टेकिंग हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। जब भी पेशेंट की जेस्टेशनल एज चेंज होगी, आपने उससे दोबारा, क्या पता वो 37 वीक्स पे पेन्स के साथ आ रही हो, क्या पता वो एब्सेंट मूवमेंट्स के साथ आ रही हो, क्या पता वो लीकिंग के साथ आ रही हो। तो जब भी जेस्टेशन चेंज होगी, क्विकली आपने 2 लफ्जों में हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन का जिक्र करना है, और फिर आप 37 वीक्स पे कहोगे कि नाउ अकॉर्डिंग टू मी विच आई स्टार्टेड her dates from 30th week of gestation, according to me she's at 37 weeks, but as she's actually unsure of dates, और sensitivity जो हमने निकाली थी 30 weeks से डेट्स कैलकुलेशन की, वो लो है। सो इस वजह से शी इज एट 37 वीक्स अकॉर्डिंग टू मी नाउ, शी कैन एक्चुअली बी at 40 weeks of gestation, or she can also be at 3 weeks minus from 37 weeks, right? So you will give her options. Okay, she can go ahead with the plan of delivery maybe 1 week after 37 weeks, क्योंकि 41 weeks से ज्यादा आप लेके नहीं जाओगे। स्वीपनिंग कर दो कि 37 वीक्स पे 1 वीक के बाद बुला के, यानी कि अकॉर्डिंग टू यू 38 वीक्स की हो जाएगी, और अदरवाइज शी कैन बी एट 41 वीक्स और माइनस 3 वीक्स 35 वीक्स। तो 38 वीक्स पे उसकी डिलीवरी का प्लान करोगे फ्रॉम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन स्पेशली बिशप स्कोरिंग, एंड देन यू गो फर्दर। और अगर वो रिफ्यूज करती है फॉर एग्जाम्पल, बट एक्सप्लेनिंग टू हर इंडक्शन, फेलियर ऑफ इंडक्शन एज वेल, बिकॉज अगर वो असल में वो 35 वीक्स पे है, क्योंकि वही बात है बिल्कुल थर्ड ट्राइमेस्टर की कैलकुलेशन में प्लस माइनस 3 वीक्स होता है। तो अगर असल में वो 35 वीक्स पे है और आप उसकी इंडक्शन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली फेलियर ऑफ इंडक्शन इज देयर, तो वो आप भी साथ बताओगे। बट अगर वो आप अभी नहीं करते और वो 41 वीक्स पे है, तो वो पोस्ट डेट हो रही है। सो गिविंग हर ऑप्शंस that she can go, number 1 option which is again बार बार कहती हूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन आप एग्जाम में बोलोगे या आप अदरवाइज भी पेशेंट के सामने बोलते हो, नंबर 1 का मतलब ये है जो आपके ख्याल से बेहतर है पेशेंट के लिए, वो वाली आपकी होती है मैनेजमेंट ऑप्शन फर्स्ट। So number 1 option और number 2 वो होती है कि which is not actually contraindicated but which can also be done. So in this case number 1 option will be that she'll go ahead with the plan of delivery at 38 weeks, जो आपके accordingly या scan के accordingly 38 बन रहा है। Number 2 option is that if she doesn't really want failure of induction because previous SVDB etc and she wants to continue so that कहीं प्री टर्म इंडक्शन ना हो रही हो, तो इस वजह से तो नंबर 2 ऑप्शन वो होगी। तो अगर तो वो आपने एग्जाम में बोलते रहना, ऑब्वियसली हम तो वो चीज ही कंटिन्यू करेंगे जो हमारे ख्याल से बेहतर है। तो आपने यही बोलते रहना है कि प्लान ऑफ इंडक्शन और वो सारा कुछ आप 38 weeks according to you. But if examiner says, yeah, even in your life also, there are patients who say, I don't want to get induced at this time because what if I am at 35 weeks और preterm induction करके आप मेरा failure of induction कर दें तो क्या? तो फिर उस केस में आपने पेशेंट को ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स बताएं कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी के, देन अगेन 1 वीक के बाद फिर इवेलुएट करोगे,
Now she is at 39 weeks according to you, or but she can also be at 42 weeks and she can also be at 36 weeks. 42 weeks according to you जब हो जाए, उसके बाद आप उसको बस फिर इंडक्शन का कह दो। ये कोई फिर मजाक तो नहीं ना कि आप उसे 46 वीक्स तक का ही वो करना शुरू कर दो। तो यू कैन नॉट टेक हर बियॉन्ड 38 और 39 वीक्स अकॉर्डिंग टू यू। जब आपके ख्याल से हो जाए, यू कैन इवन कीप हर एडमिटेड। अगर पेशेंट रिफ्यूज करती है और वो कहती है कि मैं 3 वीक्स माइनस ना हूँ, और वो आपके हिसाब से 38 वीक्स पहुंच चुकी है या वो 39 वीक्स पहुंच चुकी है, और पेशेंट स्टिल से इसके क्या पता मैं अभी 36 वीक्स पे हूँ या मैं 37 पे हूँ, यू कैन कीप हर एडमिटेड, टेल हर द रिस्क ऑफ आईयूडी इवन। वो फिर बहुत ही गलत उसके साथ है। बट अगेन it's not a compulsion or anything, but it's always better कि आप 42 weeks according to you जब हो गया, don't take her beyond that at all. तो unsure of dates में आप 30 weeks for example patient आई है according to you and fundal height and according to the to ultrasound, तो आप 2 weekly लेके चले, 2 weekly आपने उसका serial growth scans कराए हैं। हर दफा डॉपलर नहीं कराना, एक बेसलाइन कराया था वो ठीक था, fetal movement ठीक है, fundal height ठीक बढ़ी है, then there is no indication of getting another doppler done। 30 weeks पे ठीक आ गया, फिर आप 2 weekly उसका serial growth scans कराओगे, growth scans बढ़ी है। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट इन सब सिचुएशन में, जैसे कि मैंने बात की कि पेशेंट 37 वीक्स पे आपने उसका किया बिशप, ना अकॉर्डिंग टू यू शी कैन बी एट 40 वीक्स और शी कैन आल्सो बी एट 3 वीक्स माइनस व्हिच इज 34 वीक्स। आपने डिस्कस किया, पेशेंट ने कहा मैं हफ्ता और वेट करूंगी, 1 वीक आगे ले गए, 41 बायोफिजिकल भी कराया ऑब्वियसली, उसके बाद पोस्ट डेट चली गई है, तो आप 41 वीक्स तक लेके जा रहे हो, आप उसका बायोफिजिकल भी कराया, एंड नाउ शी इज एट 41 वीक्स अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड। इसमें एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है सीरियल ग्रोथ स्कैन्स की। ये सब पूरी क्लास जो अभी तक हुई है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सीरियल ग्रोथ स्कैन में जब पेशेंट पोस्ट डेट होना शुरू होता है, असल में देखो ग्रोथ बेबी की फॉर एग्जांपल 36 वीक्स या 37 वीक्स आ रही है, आपके ख्याल से बेबी पहुंच चुके हैं 39 या 40 वीक्स पे। एक टाइम आता है जब लाइकर कम होना शुरू हो जाता है और ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की, राइट? इन दोनों में से जो एक इंडिकेशन आ जाए वो पोस्ट डेट की निशानी है, उसका मतलब है देयर एंड देन एडमिट करके बेबी को डिलीवर कर दिया जाए। तो आपको अकॉर्डिंग टू यू इफ बेबी इज एट 37 वीक्स, तो अगर उसके बाद आप उसका अल्ट्रासाउंड कराओगे तो डेफिनेटली उसका या तो लाइकर कम होना शुरू हो जाएगा या उसकी ग्रोथ एक टाइम पे आके रुक जाएगी। तो सीरियल ग्रोथ स्कैन्स का मकसद भी यही है कि हम सीरियल ग्रोथ स्कैन्स करा रहे हैं कि जहां पर जाके ग्रोथ रुक गई या जहां पर जाके लाइकर कम होना शुरू हो गया वो पोस्ट डेट की निशानी है, तो फिर कंसिडर डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैम अगर ये इसमें 3 वीक्स की मैडम आप कह रही हैं कि वो डिस्क्रिपेंसी आती है, जैसे पेशेंट 37 वीक्स पे है, तो मैडम उसमें हम माइनस जैसे वो आप बता रही हैं कि 34 होगा, तो फिर मैडम उसके जी मैडम बिल्कुल आप सही कह रहे हो, अगर वो 37 वीक्स है तो वो -3 करके वो 34 वीक्स भी हो तो सकता है। मैडम उसके पैरामीटर्स अगर 34 के नहीं आ रहे और 36 के हैं, तो फिर तो हम ये करेक्ट, बार बार यही बता रही हूँ, सेंसिटिविटी ऑफ अल्ट्रासाउंड इन थर्ड ट्राइमेस्टर इज नॉट वेरी रिलायबल। नंबर 2, वो योर फंडल हाइट इज नॉट रिलायबल। अल्ट्रासाउंड में जो पैरामीटर्स हैं वो ±3 वीक्स होते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के। ठीक है, ये क्लैरिटी कर ले। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ±2 वीक्स के पैरामीटर्स आ सकते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में ±3 वीक्स। अगर पैरामीटर्स पे हम इतना यकीन कर रहे होते तो फिर तो हमारी डेट्स का मसला ही ना रहता थर्ड ट्राइमेस्टर में। जी आमना, जी आमना ने हैंड रेज किया है। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ मैम, जैसे ये अब अगर 30 वीक्स पे है और 8 HP है, ऑल्दो एसिम्प्टोमेटिक है, तो क्या हम ये कोट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू SOGP फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें अनीमिया करेक्ट करना ही पेरेंटल आयरन से है, क्योंकि हमारे पेशेंट नॉन कंप्लाइंट है? I don't say that. It's not like that. No. देखो इस तरह तो आप हर एक में अगर IV आयरन लगाते रहोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो। इट्स आई डोंट नो, SOGP में भी देखो यू हैव टू categorize your patients according to their compliance. If she's good at coming up for follow-ups, देखो अब ये वाले पेशेंट में नंबर 1 compliance के आप उसे ओरल मेडिसिन देखो, 2 हफ्ते के बाद हमने क्यों उसका HB रिपीट कराया टू चेक द compliance।
ठीक है ना। 2 हफ्ते बाद अगर एचपी कम होता तो हमें पता चल जाता कि वो कंप्लायंट नहीं है। फॉलोअप्स के लिए वो आ सकती है या नहीं आ सकती। हर मरीज को नॉन कंप्लायंट डिक्लेयर करके आईवी आयरन लगा देना, इससे बड़ी गलती कोई है नहीं। आप जो गाइडलाइन की बात कर रहे हो उसे और गौर से पढ़ो। देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज। इट्स नॉट लाइक दैट के हर पेशेंट में, एशिया में हर पेशेंट में आप पकड़ के आईवी आयरन ही लगाते रहो, या पाकिस्तान में हर पेशेंट में पकड़ के आप आईवी आयरन। It never happens like that. You don't do it in your wards, you don't do it in your OPDs, you are not doing it in your practice also. You cannot. IV iron is an expensive medicine. Number one. Number two, it is एक पेशेंट को रखना पड़ता है कुछ देर के लिए हॉस्पिटल में, और फिर आप देते हो। वेरी रेयर बट रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद इट एज वेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो हमने 2 हफ्ते बाद जो उसकी एचबी रिपीट की थी वो कंप्लायंसी तो देखने के लिए की थी। ठीक है अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। मैम ये किसी ने सॉरी यहीं पे किसी ने कहा है कि एसओजीपी में, देखो बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वार्ड में बैठ के आप हर एक को आईवी आयरन क्यों नहीं लिख के दे रहे? आर यू डूइंग इट? क्या हर बेड पे आपके वार्ड में आईवी आयरन का पेशेंट लेटा हुआ है? 8 एचबी हमारे कंट्री में इज अ वेरी कॉमन एचबी। मतलब ये बहुत एक कॉमन सी बात है कि एवरी लेडी इज हैविंग 8 एचबी इन हर प्रेगनेंसी एंड शी इज कमिंग टू योर डिपार्टमेंट फॉर फॉलो अप। आर यू गिविंग आईवी आयरन टू ईच एंड एवरी लेडी? आपके इस तरह तो हर बेड पे आईवी आयरन का पेशेंट लेटा होगा। यू हैव टू टेल मी, इज इट रियली हैपनिंग दैट? मैम एक्सक्यूज मी। पूछना है। जी मरी। मैडम मुझे मींस कि अभी ये समझ आई है कि हम ओपीडी में बैठे हुए हैं और फर्स्ट टाइम पेशेंट ने प्रेजेंट किया है 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। वो उसका फर्स्ट विजिट था। मैंने जब उसका स्कैन किया, बायोमेट्री उसकी लेट्स सपोज 32 वीक की है, तो इसके साथ जो है ये प्लस माइनस 3 वीक का डिफरेंस है। मींस कि शी कैन बी ऑफ 29 वीक एंड शी कैन बी ऑफ 35। उससे Very nice. ऑनवर्ड में उसका बेसलाइन सब कुछ स्टेब्लिश करूंगी और आगे से आपने जैसा बताया कि उस तरह लेके चलूंगी ना मैडम। जी जी। एक चीज सॉरी, आपने ठीक कहा। पेशेंट फॉर एग्जांपल 7 to 8 मंथ में आई है, आपने फंडल हाइट की विच इज 30 वीक्स, राइट? आपने अल्ट्रासाउंड कराया, 30 वीक्स के पैरामीटर्स है। आप बिल्कुल बेशक ये कहो कि 3 वीक्स प्लस माइनस होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू विल डिक्लेयर हर टू बी एट 30 वीक्स। अब आप 30 वीक्स के अकॉर्डिंगली 2 वीकली उसको बुलाते रहोगे, फंडल हाइट देखोगे और उसके बायोमेट्री देखोगे। ठीक है, 2 वीकली जब ग्रोथ स्कैन्स कर करके, या तो आप उस टाइम तक ले जाओ जब ग्रोथ होनी रुक जाए या लाइकर कम होना शुरू हो जाए, और 2 वीकली पे 36 वीक्स पे एवेलुएट करके उसके 1 वीकली विजिट कर दो। 1 वीकली के बाद 37 वीक्स पे यू कैन ऑफर हर डिलीवरी आफ्टर डूइंग हर बिशप ऑफ कोर्स। और इफ शी रिफ्यूजेज यू कैन टेक हर बियॉन्ड 1 or 2 weeks at maximum, but not beyond that. अगर वो उससे आगे कहे, you can keep her admitted. But again, if at now 37 or 38 weeks, according to us, उसका अगर आप स्कैन करा रहे हो और एक जगह पर जाके उसका स्कैन रुक गया, ग्रोथ रुक गई है, या फिर उसका लाइकर कम होना शुरू हो गया, तो इट मीन्स नाउ इज द टाइम फॉर डिलीवरी। ठीक है मरियम? जी मैडम बिल्कुल। और जहां पे आयरन डेफिशिएंसी की बात है, आप लोग एसओजीपी से थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो। पैरेंटल आयरन इज डेफिनेट, देखो एसओजीपी में बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। हमारी जो खवातीन है इसमें, व्हेन यू आर डूइंग योर ओपीडी, आपने पेशेंट को, जब भी हम किसी पेशेंट से मैनेजमेंट की बात करते हैं, वी फर्स्ट कैटेगराइज हर के क्या वो फॉलोअप के लिए कभी आएगी भी। वो बेचारी अगर आई, देखो गांव से उठ के वो आ रही है, एंड यू डोंट थिंक कि वो 2 हफ्ते के बाद आपके पास एचबी की रिपोर्ट भी लेकर आएगी, तो आप उसे ओरल आयरन का ट्रायल देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? क्या पता आप ओरल आयरन लिख दो, घर में कोई हो ही ना उसको ले ला कर देने वाला ओरल आयरन। तो ठीक है। तो यस, एंड मेजोरिटी, अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ लेडीज इन आवर कंट्री आर लाइक दैट कि मे बी वो कंप्लाइंट ना हो, मे बी वो आ ही ना सके, उन्हें मिले ही ना वो दवाई, तो आप उनको कहते हो चलो अब आइए तो आईडी लगा कर भेजे। बट हर एक में इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी हर हॉस्पिटल में हर एक मरीज को आप पकड़ के आईवी लगाते रहो, तो आपको कैटेगराइज करना होता है। जी साइमा। मैम हमारे पास प्राइमरी पेशेंट आती है, प्राइमरी ग्रेविडा 28 वीक्स में, 8.5 एचपी है और सिम्टोमेटिक है। मैम अगर जब वो सिम्टोमेटिक है तो एक ब्लड तो हम उसको लगाएंगे ना?
एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, व्हेन यू अच्छा ये एनीमिया की क्लास नहीं थी इसलिए मैंने एनीमिया बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, वरना तो ये एक अलग ही डिस्कशन है, वी कैन डू इट अगेन, हम कभी फिर दोबारा एनीमिया का केस कर सकते हैं। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, एक ये स्टेटमेंट बोलना है कि पेशेंट इज सिम्टोमेटिक बिकॉज ऑफ लो एचबी, ये इसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर वेदर शी इज रियली सिम्टोमेटिक और नॉट। उसमें फिर आपने देखो, आपने पेशेंट से पूछना है कि वो कहती है सांस हर एक को चढ़ता है, सीढ़ी चढ़ने से हर एक को चढ़ता है सांस, प्रेगनेंसी में दिल की घबराहट हर एक को होती है, अर्ली फटीगेबिलिटी हर एक को होती है। आपने रूल आउट करना है कि क्या ये अनीमिया सिम्टोमेटिक है या नहीं। तो आपने से पूछना है कि तुम्हारे घर में अभी आजकल हु इज डूइंग योर हाउस, आपके घर के काम कौन कर रहा है, किचन में कौन, इफ शी इज अनेबल टू डू हर किचन वर्क, कोई और आके कर रहा है, या वो बेचारी अपने बच्चे नहीं देख सक रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब तो फिर तो वो रियली शी इज सिम्टोमेटिक। फिर तो 8.5 एचपी है तो यस एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगी। सिम्टोमेटिक एचपी, सिम्टोमेटिक एनीमिया में अगर आप एक ब्लड भी लगाओगे पैक्सेल ट्रांसफ्यूजन, तो पेशेंट का एचबी ठीक होना और सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। 5 एचपी पे भी अगर आप सिम्टम्स पे लगाओगे तो एक ब्लड से ही वो ठीक हो जाती है, उसके बाद जरूरी नहीं ब्लड ही ब्लड पे ब्लड सिम्टम्स के नाम पे लगे, एचबी की अलग बात है, ठीक है। और अगर कोई पेशेंट है कि मैक्सिमम 2 के बाद भी उसके सिम्टम्स ठीक नहीं हुए तो शी नीड्स इवैल्यूएशन, 2 से ज्यादा सिम्टम्स की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि देन व्हिच मींस दैट उसकी कोई कार्डियक इवैल्यूएशन और ज्यादा होने की जरूरत है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि ब्लड के बाद सिम्टम्स ठीक ना हो। सो एक्सक्यूज मी, इन पेशेंट्स के अंदर इमीडिएटली सिम्टम्स का रिलीफ मिलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। सो सिम्टम्स को पहले तो कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज बेसिकली आंसर, आई होप कि आंसर ऑफ डेट्स आपको क्लियर हो गए। जल्दी से लास्ट 2 क्वेश्चंस फिर हम क्लास खत्म करेंगे। जी साइमा, मैम हो गया, थैंक यू। हो गया, चलो दैट्स ग्रेट। सो अनीमिया की तो वैसे डिस्कशन आई थिंक मेरी वैसे यूट्यूब पे काफी क्लासेस हैं अनीमिया को लेकर, बट अगेन अनीमिया के तो डिफरेंट सिनेरियोस बनते हैं, वी कैन डेफिनेटली डू मोर क्लासेस ऑन अनीमिया, जो कि बहुत जरूरी है। आज आंसर ऑफ डेट्स आई होप कि क्लैरिटी हो गई है कुछ। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. मैम नेक्स्ट वीक कौन सा टॉपिक